Okay, so good evening, everybody, and once again, welcome to the evening of solid states. And we are continuing with the topic that is making of the unit cell, especially for the today we have to discuss face-centered cubic unit cell. So, making its coordination number, a number of atoms in face-centered cubic unit cell, and the density, या फिर space acquired, या फिर you can say packing efficiency in face-centered cubic unit cell. Okay. Till that, what we have discussed here in the chapter, solid state, the properties of solid, gaseous, and liquid state comparative studies. Solids are classified into crystalline and amorphous solids. Then the classification of crystalline solids into the molecular, ionic, metallic, and covalent solids. That is the part in first section, which is introductory part. Middle part is related with the core concept what we are discussing as of now, where we have seen what is space lattice, also called as a crystal lattice. Then unit cell, definition of unit cell, and how many types of unit cells are present according to mathematician Brives. We have seen that. Furthermore, we have seen there are 14 types of unit cell, including 7 main types and their subtypes. There are 14 types of unit cells, and these unit cells are based on depend upon the age length and bond angle. So that is what we have seen. ये उसके अंदर हमने discuss कर दिया. Which going ahead, थोड़ा सा आगे जाते हैं हमने ये भी देखा. Though there are main 7 types, we have to discuss cubic unit cell, which has the condition A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. That is what we discuss here in this chapter. So we have seen that too again. Then cubic unit cell consists of 3 unit cells. That is simple cubic unit cell, also known as a primitive cubic unit cell, SCC in short. Body centered cubic unit cell, BCC, and face centered cubic unit cell, FCC. ये तीनों units को हमने making of unit cell, number of atoms, coordination number, and packing efficiency या फिर density या फिर how much space is required, उसके आधार पर हमने उसको देखा. तो आज की तारीख में हम डिस्कस करेंगे that is face centered cubic unit cell. So let's move to face centered cubic unit cell. Okay, so we are here face centered cubic unit cell, also known as the FCC. Face centered cubic unit cell is called as FCC. We have to discuss that FCC. ठीक है. Then इसके अंदर वापस हेडिंग यही रहेंगे. Simply you can say making of this unit cell. Number 2, it's number of atoms or number of particles present in this. Number 3, coordination number, and number 4 is packing efficiency या फिर density. You can say packing efficiency. So we can calculate easily. That is, what is the density, how much space is required, what is this packing efficiency in this one. So these are the 4 words what we discuss regarding face-centered cubic unit cell. Let's discuss first one, that is making of this unit cell. Okay, so when we discuss the making of unit cell, we have the diagram as the cubical diagram. This is face-centered cubic unit cell. Well, there are 8 corners and 8 particles are present on the 8 corners of the cube. What we have here, इस तरह के हम लोगों को मिलता है. 8 particles present on the 8 corners of the cube. You can see the cube well. Whereas this cube has 6 faces. There is a front face, left, right, top, and bottom. So this is rightward. So here 1 particle is present on this face. This is leftward. 1 particle is present on this one. This is bottom where 1 particle is present, and this is top where 1 particle is present. Now अभी भी 1 2 3 4 फेस हो गए. 2 फेस बचते हैं, फ्रंट फेस एंड बैक फेस. तो ये जो है, ये लाइन में फ्रंट फेस कंसीडर करता हूं, उसका सेंटर समवेयर यहाँ पे आएगा, और ये वाला हमारा बैक फेस कंसीडर करते हैं, उसका सेंटर समवेयर यहाँ पे आएगा. So this is what you have to have the imagination power in order to get this diagram well, because this is the 2D diagram what I have drawn on the board. आपको डिस्कस करना और समझना है कि this is the front face and this is the back face. बैक फेस पे पार्टिकल है, फ्रंट फेस पे पार्टिकल है. असल में अगर हम क्यूब देखते हैं तो ये सारे पार्टिकल्स नहीं दिखाए. Now we have to discuss making of this cubic unit cell. This
face centered cubic unit cell is obtained out of ABC three-dimensional close packing arrangement. Yeah, closest close packing arrangement it is also called. ABC close packing arrangement, yeah, closest close packing arrangement. So this is obtained out of. So face centered cubic unit cell is obtained out of closest close packing arrangement. या फिर ABC three-dimensional close packing arrangements. देखेंगे क्या होते हैं वो वाले. पहला point. Number one. Number two. It has 8 corners. 8 particles are present on the 8 corners of the cube. Number three. Being this is a face-centered cubic unit cell. Why it is called as a face-centered cubic unit cell? The reason behind that, this cube has 6 faces, and on each face there lies a one particle. So see, these are the faces where lies a one particle. So on each face of this cube lies a one particle, and that's why it is called as a face-centered cubic unit cell. It has even 12 edges and all and all. This is called as a making of this unit cell. So we are done with making of the unit cell. Making of unit cell में point number one. This is face-centered cubic unit cell is obtained out of ABC three-dimensional close packing arrangement, or either closest close packing arrangement, CCP कहा जाता है. Closest close packing arrangement, CCP. इससे ये मिलता है. दूसरा है, it is having 8 corners and 8 particles are present on the 8 corners. Point number three. Whereas one particle is present on each face of this cube, and that's why it is called a face-centered cubic unit cell. You need that 12 edges, वगैरह वगैरह ये है उसके. This is called the making of face-centered cubic unit cell. Point number two, number of atoms. क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं तुम में से कि हमने जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल डिस्कस किया है, हमने जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल डिस्कस किया है, वी हैव सीन दैट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 1 है. सॉरी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर में 2 एटम का बना हुआ. तो कोई बता सकता है कि ये जो है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स का ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना होगा? कोई अंदाजा लगा सकता है? पहले दो जिसको समझे हुए हैं उसके आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल. Sir, is it 14? Sir, is it 4? Okay, but 4 is the right answer. Thank you for your answer, appreciate. But on what basis you told that is it has a 4 particles, or it is made up of 4 particles? Is it logical? Yeah, either you read it and that's why you know that. How we are going to prove it is made up of 4 particles? Sure. Yes. Sir, shall I try to elaborate your answer? Sir, we know that corner atoms contribute 1/8 part of it, right? Very So we good. could Yeah, from take them as one particle. okay, Then just right from corners 1/8 into 8 is equal to 1 atom. Yeah, 1 particle. Clear. Yes, sir. Then, Yeah. sir, each surface is containing a hemisphere. Each Sorry, huh. space. Sir, each surface is containing hemisphere, and there are 6 surfaces. So we can say that 6 hemispheres can make up to 3 atoms. One half into 6. That means 3 atoms. Is it right? Yes, sir. Yes. The total So total atoms would be 4. R 4. atoms, or you can say 4 particles. Perfect. Perfect. Appreciate. Big learner here. पहले 2 में हमने डिस्कस किया था कि 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर. किसी भी यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है उस यूनिट सेल के अंदर, वो मैटर करता है. और इसलिए मैं कल से कॉमन वॉल का एग्जांपल दे रहा हूँ. फ्लैट के अंदर, घर के अंदर, बिल्डिंग के, है ना. हमारा घर हमारा फ्लैट होगा और दूसरे का कई बाजू में फ्लैट या बंगलो है. दोनों के बीच में अगर वॉल कॉमन है तो वो वॉल दोनों के लिए कॉमन होता है. लेकिन वॉल के इस तरफ शायद हमारा घर है, वॉल की उस तरफ शायद दूसरे लोगों का घर है, बट वॉल तो दोनों में इक्वली डिवाइडेड होता है, कॉमन है. उसी तरीके से ये जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो पार्टिकल टोटल 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है. 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है और इसलिए इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होता है. 8 में डिवाइडेड है तो इसलिए वो 1/8 होगा. और ऐसे कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं. एक कॉर्नर से 1/8 पार्टिकल आता है, तो कुल मिला के सारे कॉर्नर से 1/8 into 8 पार्टिकल 1 एटम आता है. ये हमने सिंपल में भी देखा था, ये हमने बीसीसी में भी देखा था, और ये एफसीसी में भी उतना ही ट्रू है. ओके, पहला पार्ट तो क्लियर हो. सिंपल क्यूबिक में दूसरे लिए एटम था ही नहीं, पार्टिकल था ही नहीं. बीसीसी में एक पार्टिकल था जो सेंटर में था, तो बॉडी में था उसके अंदर, और वो सिर्फ उसी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो पूरा का पूरा आ जाता था. इसलिए कुल मिला के 2 पार्टिकल्स या 2 एटम्स आते हैं बीसीसी के अंदर. When we talk about this face centered cubic unit cell, FCC,
यहाँ पे कॉर्नर के अलावा पार्टिकल प्रेजेंट है फेस पे, सो यू कैन से दिस इज द फेस वन, ओके, कॉर्नर फ्रॉम द फेस। अभी कोई भी सिंपल सा अंदाजा लगेगा आप लोग कि ये जो फेस दिखता है आपको, ये वाला फेस, ये पार्टिकल है फेस, इसके बाजू में दूसरा एक यूनिट सेल होगा, क्लियर एग्जैक्टली उसके सामने होगा, क्लियर एग्जैक्टली उसके सामने होगा। सो होता क्या है कि ये पार्टिकल सिर्फ इसी यूनिट सेल में और उसके अपोजिट यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो दिस पार्टिकल कैन कंट्रीब्यूट इन राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो किसी भी फेस का पार्टिकल, ये पार्टिकल की बात करते हैं तो ये टॉप यूनिट सेल में और बॉटम यूनिट सेल में, दो यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर सकता है। बॉटम का ये टॉप और नीचे उसके बॉटम में आएगा, उसमें यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसका मतलब है कोई भी फेस का पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो सिर्फ दो यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो इसमें और इसके सामने में। सो दैट्स व्हाई फेस का पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/2, कोई भी पार्टिकल 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा, आधा इस यूनिट सेल में, आधा उसके सामने वाले यूनिट सेल। और ऐसे फेस कितने हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, so left right top bottom front back, there are 6 faces, so we can say 6 1/2 to 6 equal to 3 atoms or 3 particles। इसके अलावा यहाँ पे कोई पार्टिकल है ही नहीं, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है या पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट है, तो कुल मिला के 1 और 3 4 एटम्स का बना हुआ है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ये 4 एटम्स का और 4 पार्टिकल्स का बना हुआ है। क्लियर विद दिस? So thank you for answering the question and elaborating or exploring the things very well. Making is done, number of atoms is also done. What remaining is this, nothing but the coordination number and density, or you can packing efficiency. Okay, so let's move to this number of atoms or packing efficiency and related things. ठीक है, so Naila, please mute your sound. Naila Sheikh. Yes, thank you. Okay, now next part is coordination number और density। ये दोनों के लिए हम लोग एक डायग्राम निकालते हैं, जिस डायग्राम का 3D व्यू हम जानते हैं, 3D व्यू हमें निकालना पड़ता है। तो ये डायग्राम में यूज करूं ताकि बाकी का हमें ड्रॉ करने में आसानी होगी। सो इसे मैं यूज करता हूं। ओके, अभी जो 3D डायग्राम ड्रॉ करते हैं नॉर्मली, तो ये सिंपल हमारा क्यूबिक यूनिट सेल और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर की एक अलग खासियत क्या होगी कि ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है कॉर्नर पे, सो कॉर्नर का पार्टिकल कॉर्नर पे है, पहले हम इस फेस का पार्टिकल कंसीडर करते हैं और कैलकुलेट, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। सो दिस इज यू कैन से दिस इज द पार्टिकल व्हिच प्रेजेंट ऑन दिस कॉर्नर, ये पार्टिकल इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है। यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है, ये रहे कॉर्नर्स के पार्टिकल, और यहाँ पर जो फेस का पार्टिकल है वो इस तरीके से रहेगा। सो ये हमारा फ्रंट फेस का पार्टिकल है, इस तरीके से ठीक है। तो ये सिर्फ फ्रंट फेस हमने कंसीडर कर दिया इस यूनिट सेल का। जो फ्रंट फेस ये इस कॉर्नर का, ये अपर कॉर्नर, ये लोअर कॉर्नर्स, ये पार्टिकल्स हो जाते हैं फ्रंट फेस। सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है आपको, ये वाला फेस राइटवर्ड फेस की बात करेंगे। सो यू कैन से दिस इज द पार्टिकल, ये, और यहाँ पे पार्टिकल आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से ये वाला पार्टिकल आपको इस स्पेस पे दिखाई देगा। जो पार्टिकल इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से होगा, और ये यहाँ से ये
ये पार्टिकल आपको दिखाई देगा, जो आधा पार्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर कट आधा पार्ट दिखाई, ये पार्टिकल आधा काटा हुआ है और इसलिए ये उसका स्फेरिकल दिख रहा है और ये इसका पीछे का एंड यहाँ पे इस तरीके से ज्यादा है, लाइक दिस, ये वाला फेस। उसी तरीके से टॉप का फेस होगा, ये टॉप, ठीक है। यहाँ पे ये पार्टिकल आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये इसका एंड है, ये इस तरीके से यहाँ पे पीछे आपको आता दिखाई देगा, लाइक दिस, दिस इज व्हाट। सो अब देखिए यहाँ पे दिस इज द फ्रंट फेस, जो हमने देखा यहाँ पे ये वाला आपको फ्रंट फेस दिखाई देता है, ये ओके। सो दिस इज द फ्रंट फेस और ये फ्रंट फेस के पार्टिकल्स लेफ्टवर्ड और टॉपवर्ड, इस तरीके से हमको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देता है। नाउ द थिंग इज दैट दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अंदर देखिए कॉर्नर पे पार्टिकल है और एट द सेम टाइम फेस पे भी पार्टिकल दिखाई देता है। अब ये लोअर बॉटम फेस और इस तरफ का फेस आपको दिखाई नहीं देगा, बस 3D व्यू में ये नहीं दिखाई देंगे हम लोगों को, ये वाला और ये दिखाई दे रहे, तो हमने ड्रॉ किया इसके अंदर। सो दिस इज व्हाट वी कैन से फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। दिस इज यू कैन से A point, this is B point, this is you can see यहाँ पे C point, यहाँ पे C point मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसे, ये वाला इस पॉइंट को मैं C point कह रहा हूँ और this is edge A, this is edge A, this is edge A, because it is a cube and that's why A is equal to B is equal to C, तो इसलिए A है सबको लिखा। अभी देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंसिटी। पहले कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, फिर उसके बाद डेंसिटी क्लेम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज the number of atoms with which any particular atom is in contact with। इसमें से कोई भी एटम कंसीडर करते हैं और दूसरे कितने एटम के वो कांटेक्ट में है, कितने एटम के टच में है, उसे हम लोग कहते हैं दैट इज यू कैन से कोऑर्डिनेशन। तो अब देखिएगा मैं ये फ्रंट फेस का पार्टिकल की बात करता हूँ, फ्रंट फेस का पार्टिकल की बात करता हूँ, इमेजिनेशन बढ़ाइएगा। ये फ्रंट फेस का पार्टिकल इसी फेस में इस पार्टिकल को टच है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3 और पार्टिकल नंबर 4, ये फ्रंट फेस के पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल जो दिखता है ये पूरा वाला, ये पार्टिकल जिस फेस में, उसी फेस में ये 4 पार्टिकल को वो टच में क्लियरली है, नो डाउट। ये वाला पार्टिकल देखिएगा, इस फेस का पार्टिकल भी उसको यहाँ पीछे टच कर रहा है। सो दिस इज, ये 4 हो गए, दिस इज 5th वन। अगर ये पार्टिकल फेस का पार्टिकल उसे टच कर रहा है 5th वन, तो ये भी करेगा 6th वन, इधर भी करेगा 7th वन, नीचे का भी करेगा 8th वन, क्योंकि हर फेस पे पार्टिकल होता है। फेस का पार्टिकल किस तरीके से यहाँ पे टच करता है, देखिए पीछे से स्फीयर को, तो ये फेस पार्टिकल यहाँ पे पीछे से उसे टच करता है, इसलिए बनता है इस फेस का पार्टिकल टच करेगा तो ये भी करेगा, इस फेस का पार्टिकल भी टच करेगा और इस फेस का पार्टिकल भी टच करेगा। तो इस पार्टिकल के पीछे यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये फेस पे, ये सारे टच करेंगे, तो वो कुल मिला के 8 हो गए, ये 4 और ये 4 8 हो गए। अभी ये वाला जो पार्टिकल दिखता है आपको, ये फेस पे है और हम जानते हैं ये पार्टिकल आधा इस यूनिट सेल के अंदर है और आधा उसके सामने के यूनिट सेल में। हाफ ऑफ द पार्टिकल इज प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल और हाफ ऑफ द पार्टिकल इज प्रेजेंट इन फ्रंट यूनिट सेल, सामने वाले यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। और सामने में प्रेजेंट है, तो जिस तरीके से ये पार्टिकल फेस के टच कर रहे हैं, सामने के यूनिट सेल के पार्टिकल भी उसी तरीके से टच करेंगे और वो भी 4 होंगे, वो भी 4 होंगे। सो 1 2 3 4 particles in the same face, then 5th 6th 7th and 8th the particles of face of this unit cell back behind और particles of face of front unit cell वो भी टच करेंगे, वो भी 4 होंगे। तो कुल मिला के प्लेन में आते हैं वो 4 पार्टिकल्स, ये फेस के हैं वो 4 पार्टिकल्स और सामने के यूनिट सेल के होंगे वो 4 पार्टिकल्स, कुल मिला के 12 पार्टिकल्स उसके टच में है या उसे कांटेक्ट में। सो ये वाला पार्टिकल मैं कंसीडर करता हूं, दिस पार्टिकल इज एग्जैक्टली इन कांटेक्ट विद 12 particles, and that's why coordination number must be 12। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम 6 के कांटेक्ट में होता है और इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बीसीसी में कोई भी पार्टिकल 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में होता है, and that's why उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कोई भी पार्टिकल 12 particles के कांटेक्ट में होता है, that's why its coordination number is 12। So we can say here coordination number is 12। तो coordination number of face center cubic unit cell is 12।
That is what we get here. This is very well done. So we have seen making, number of atoms, and coordination number. Now next part is what? आप जानते हो next setting क्या है? What we have to discuss is density, or either you can say packing efficiency. Density or you can say packing efficiency. That is what we get here. ये हम लोग उसके अंदर मिलता है. So उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो we'll have this one packing efficiency. Packing efficiency कोई भी बताए मुझे किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं packing efficiency, किस तरीके से कर सकते हैं? अगर कोई बता सकता है पहले दो के आधार पर तो बता दीजिए मुझे. पैकिंग एफिशिएंसी के कौन से स्टेजेस में जाना है या फिर हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड, उसके लिए कौन से स्टेजेस में जाना है, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी. सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी, आल्सो कॉल्ड एज स्पेस रिक्वायर्ड, या फिर आल्सो कॉल्ड एज यू कैन से पैकिंग एफिशिएंसी. कोई बताएगा किस तरीके से स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग? स्टेप नंबर 1, कोई भी बताइए, जिन्होंने समझा हुआ है पहले दो वो बता पाएगा. पैकिंग एफिशिएंसी के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड एंड हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो हमने एससीसी में कैलकुलेट किया था, हमने बीसीसी में कैलकुलेट किया. कोई भी बताइए क्या स्टेप्स है? स्टेप नंबर 1. यस प्लीज. We need to find the radius. यस वी नीड टू फाइंड द रेडियस. बट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस यूनिट सेल का? सर वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. वेरी गुड. सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहते हैं हम लोग. वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो क्या रहता है? एल क्यूब. एल क्यूब मतलब ए क्यूब. सो हम लोगों को ए क्यूब मिला बिकॉज ये ए क्यूब का वॉल्यूम मिल गया. वेरी गुड. अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब. नाउ वी मस्ट फाइंड ए, है ना? ए फाइंड करना पड़ेगा. ए कितना है ये फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम निकाल पाएंगे हम लोग. ये दूसरा स्टेज है. सो दूसरा स्टेज है टू फाइंड ए, दैट इज एज लेंथ. एज लेंथ फाइंड करना है. अभी इसके अंदर एज लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका देखिए. ये पॉइंट ये है, पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. भाई यहां से डायगोनल निकालता हूं लाइक दिस वन. और जैसे इसे ए कहा, ये वाला ए होता है, इसे मैं बी कहता हूं. और दिस बिकम्स द राइट एंगल ट्रायंगल. Isn't it? So this becomes the right angle triangle. Triangle ABC, right angle triangle. So according to Pythagoras theorem, क्या होगा? Triangle ABC, which is the right angle triangle. So according to Pythagoras theorem, क्या होगा फिर? Therefore, बोलिए. Yes. Triangle ABC के लिए Pythagoras theorem के हिसाब से क्या होगा? If we have to calculate the B, which is diagonal, right angle triangle का, is equal to a square plus a equal square. to a square plus a square, है ना? So now B square is equal to, we can say twice a square. But अभी ये जो B की बात करते हैं, सिंपल से देखिए कि B क्या है? यहां से ये पार्टिकल, ये इस पार्टिकल का रेडियस है, यहां से इधर तक ये डायमीटर है. डायमीटर इज ट्वाइस r, है ना? ये जो है यहां से यहां तक, दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस r, यहां से लेकर यहां तक. और ये वापस इसका रेडियस आता है, रेडियस. तो b कितना है? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b देन? बट b इज इक्वल टू 4r. इज इट क्लियर? दिस इज r, दिस इज ट्वाइस r, दिस इज वापस r. तो वी कैन सारा ऐड करेंगे तो वी गेट 4r. b इज इक्वल टू 4r. कैन वी पुट दिस वैल्यू हियर देन? Therefore क्या होगा? b square is equal to, sorry, b square का वैल्यू कितना है? 4r, उसका स्क्वायर is equal to twice a square. Therefore बोलिए 16r square is equal to twice a square. Therefore a square is equal to 16r square divided by 2. So therefore a square is equal to 8r square. So therefore a is equal to कितना होगा? a is equal to कितना होगा? आठ का रूट लेना है. टू रूट 2r. इसका रूट कितना है? 2 into root 2 into r. Yes, 2 root 2r is the root of this one. देखिए 8 का रूट निकालना है तो 2 root 2r ये हमको मिल जाएगा. इसका अगर स्क्वायर करते हो आप
तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको वापस ये मिलेगा, सिंपल है, इसका स्क्वायर करो आप, आपको वापस 8r स्क्वायर मिलता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a। एज लेंथ निकालना जरूरी था, तो यहाँ पर भी हमने एज लेंथ निकाला, जो इसके अंदर पुट करना जरूरी है हमारे लिए। इजी? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो देखिए when we have to calculate the packing efficiency, सबसे पहले हमें देखना है कि how much volume of this cube is there, and the formula, general formula is L cube which is equal to A cube. A is a edge length. जब तक एज लेंथ पता नहीं तब तक हम उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो एज लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ट्रायंगल कंसीडर किया, ए बी सी या फ्रंट फेस का जो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू होता है, क्या होता है, तो ये जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ साइड स्क्वायर this AB and BC, so B square is equal to A square, A square मिल गया। लेकिन B कितना है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि B is nothing but 4R, फाइनली we got A is equal to 2√2R, ये हम लोग को मिल जाता है। तो अभी देखिए मैं ये बाकी सब बताता हूँ यहाँ से, ओके, और ये पुट करता हूँ कि but A is equal to this is 2√2R, ये मिल जाता है। ये वैल्यू अगर इसके अंदर रख देते हैं, therefore a cube is equal to इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो इसका क्यूब कितना आएगा कोई बताएगा? मतलब 2√2R उसका क्यूब कितना है, बोलिए। यस कीजिए, क्यूब कीजिए, मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स है। Yes, anyone? I think it's 16√2R cube. 16 √2R cube. R cube. So this is the value what we get here. देखिए 2 का स्क्वायर करो कितना आता है? 8 आएगा। इसका क्यूब करो, √2 into √2 into 2, √2 हो जाएगा, तो 8 to 16 √2 R cube इतना बनेगा आपका। So this is what we have. तो ये हम लोग आता है, what is this? This is actually volume of cube. This is actually volume of cube. So दूसरी बात है, क्यूब का वॉल्यूम तो हम लोगों को मिल गया। अभी ये जो क्यूब है इसके अंदर एक्चुअल पार्टिकल्स कितने हैं हम देखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर एक्चुअली कॉर्नर्स हैं और फेस से मिला के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते कितने हैं? 4 पार्टिकल्स होते हैं। सो हम ऐसा कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई r क्यूब, ये निकाल सकते हैं। अभी एक्चुअली इस यूनिट सेल के अंदर 4 पार्टिकल्स होते हैं, सो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा 16/3 पाई r क्यूब। होगा कि नहीं होगा? इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, तो 4 स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब, तो 4 4 जा 16/3 पाई r क्यूब इज द वॉल्यूम। नाउ हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब which is कितना है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब? दिस इज यू कैन से 16√2 r cube counts to be 100%. Then the volume of 4 spheres जो कितना है 16/3 pi r cube counts to be x%. Just cross multiplication कीजिएगा, so the space acquired by the particles, मतलब क्यूब का वॉल्यूम इतना है, out of this much space is acquired by the particle, that comes to be how percentage। ये अगर 100% मानते हैं तो ये जो स्पेस है वो कितना परसेंट में आता है ये कैलकुलेट करना। so therefore x is equal to क्या आएगा? that is you can say 16/3 pi r cube is equal into 100/1 into 1/16 into √2 r cube, इतना आएगा। अभी ये सॉल्व करते हैं, r क्यूब चला जाएगा। अभी बाकी आप सॉल्व करो, x% इज इक्वल टू कितना आता है? दिस ऑलमोस्ट इक्वल टू 74% के अराउंड आंसर आता है। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए एवरीवन, दिस इज द स्पेस एक्वायर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है, कोई भी सॉलिड अगर इस तरीके के अरेंजमेंट से बनता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से बनता है, तो उसके अंदर 74% स्पेस इज एक्वायर्ड। 74% स्पेस एक्वायर्ड। तो एम्प्टी स्पेसेस जैसे यहाँ पे दिखता है, ऐसा बहुत कम जगह होती है जहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिखता है, वो है कितना? ऑलमोस्ट यू कैन से 26% के आसपास एम्प्टी स्पेस है। अभी तक हमने 3 देखे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 52% स्पेस एक्वायर्ड था,
48% ऑलमोस्ट 47.6 वगैरह, इतना स्पेस उसके अंदर एम्प्टी है, मतलब आधा ऑलमोस्ट भरा हुआ है, आधा उसके अंदर एम्प्टी होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। बीसीसी की बात करते हैं तो उसके अंदर 68% स्पेस इज एक्वायर्ड, 68% एक्वायर्ड होता है, 32% एम्प्टी होता है। और हम जब एफसीसी की बात करते हैं तो इसके अंदर 74% स्पेस इज एक्वायर्ड, 26% स्पेस इज एम्प्टी। तो अगर आप देखिएगा तीन सॉलिड की हम बात करते हैं कि कोई सॉलिड एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से बना हुआ है, दूसरा सॉलिड बीसीसी से बना है, और तीसरा सॉलिड अगर एफसीसी से बना है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? सबसे ज्यादा डेंसिटी एफसीसी की है, सबसे ज्यादा डेंसिटी एफसीसी की है, बिकॉज इसमें 74% स्पेस इज एक्वायर्ड। उसके बाद बीसीसी की है जिसके अंदर 68% स्पेस इज एक्वायर्ड, और सबसे कम डेंसिटी की बात करते हैं तो दैट इज इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बिकॉज उसके अंदर ओनली यू कैन से 52.4% space is acquired, बाकी 47.6% space is empty. So that is what we can say. Packing efficiency बात करते हैं तो we have this one. तो सबसे strongest solid अगर face center cubic unit cell से बनेगा तो वही बनता है. That is what we can say here regarding this face center cubic unit cell, making, number of atoms, coordination number and density. We have done cubic unit cell जिसके तीनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज नथिंग बट यू कैन से यूनिट सेल व्हिच इज कॉल्ड डेंसिटी की बात कर रहे थे लोग, बट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट टाइम इज डन बिकॉज थोड़ा सा लेटली हमने स्टार्ट कर दिया था, कोई बात नहीं। डेंसिटी जो मैं बात कर रहा था, बार बार बात कर रहा था, डेंसिटी, हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी, स्पेसिफिकली व्हेन वी अप्लाई द डेंसिटी टू दिस एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, तो उसके अंदर किस तरीके से स्मार्ट बदलाव होते हैं, एक स्मार्ट रीअरेंजमेंट उसके अंदर होते हैं, वो हमें डिस्कस करना है by just knowing the formula of density, because everyone amongst us knows the formula of density. Will anyone let me know the formula of density? General formula of density. Mass upon volume. Very good. The formula of density is equal to mass upon volume. So by knowing the mass and dividing it with the volume, we can calculate the density of this unit cells. Either it is SCC, BCC or FCC. How to calculate it, how to convert the formula, we'll discuss in tomorrow's lecture. But this SCC, BCC and FCC is a very core concepts, are very core concepts of this solid state. Everyone need to thorough through these chapters or for these topics. So that's all for today. See you tomorrow. Thank you very much. Bye.